It's very exciting, and when you walk in and have the media, take your pictures and the frenzy, it feels like we're back to old times, and it feels like we're all back in action. And I hope the film industry is continues in the same manner now, and everything is back in action and like old times. So it feels really great. So, the song is releasing tomorrow, Puppy song by Mika Singh, and Sayoni is doing extremely well. So, as a producer, I'm sure you must be feeling proud that, there's something good, some good news happening in this pandemic. How excited are you? Finally, the release of a movie always feels like the birth of your baby. Like you've been planning it for so long and working on it and nourishing it. And then finally, when it reaches its zenith, and when it's going to release, it feels like it's just like a dream. It's you're just waiting for it to realize, and especially when they put in such hard work, Tanmay, Muskan, and they're looking absolutely stunning in the film. The music is awesome. Everything is so good, and it's really exciting, and we're all pretty kicked about it. Yeah. So, Lucky, what message would you like to give to the audience now? Because theatre's opening, and the film is a theatrical release and not just a OTT and a digital at this point. I would like to tell the audience one thing. They're newcomers, and we want you to encourage the newcomers. We want you to come to the theaters. We want you to watch the film. We want you to accept and embrace new talent from all over the country. Talent that doesn't come from the film industry, talent that comes from various fields of life, and they take the plunge and they work really hard to give you their best. So we would love for you to embrace them with open arms. एंड जैसा कि अभी हम सब देख रहे हैं कि लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ है, हम सभी यहाँ पर हैं, तो आप बताइए कि लॉकडाउन कैसे बीता एंड लॉकडाउन के बाद ये फिल्म आ रही है तो क्या फील करती हैं आप? लॉकडाउन बस इसी इंतजार में बीता कि कब ये फिल्म रिलीज होगी। कब ये लॉकडाउन खत्म होगी? यस, इसी का इंतजार था। अब लॉकडाउन इज ओवर, एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू नॉर्मल, सो वी आर वेरी हैप्पी, और हम ये कदम ले रहे हैं फिल्म को रिलीज़ करने का, और हम चाहते हैं कि सब कोई आए और ये फिल्म को देखे और अप्रिशिएट करे। Lucky, now that you've started, the banner is on and we already have Tanmay and Muskan being launched. What's next? Good things, big things, as big as this, or we try to get better with every step of the way, and a lot of genres and a lot of plans. Thank you and all the best. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Then finally the industry is getting back, and today you're here to support Mohammed Bhai for Sayoni. What do you have to say? All I can say is Mohammed Bhai is a very smart guy. He's making hay while the sun shines. I think he's taking very bold steps to release his film at a time where theatres need it, and especially the industry needs it. And these baby steps that everybody takes towards getting back to some kind of normalcy is excellent. Though I really wish him all the best. I hope his movie does well. I hope it pulls people to the theatre, and I'm sure it will. The trailers are looking very commercial, and I think people are looking forward to getting back to their theatres with their boyfriends, girlfriends, families. I don't know, but let's see. I hope families go back soon as well. Good initiative, yeah. What can I say? It's been a tough time for everybody. I think the whole industry is looking forward to getting back on their toes, and especially all of us are really waiting to go back and see Hindi movies in the theatre. So yeah, it's just amazing to be here, and amazing to see that सब लोग कोविड से ऊपर गए हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहिए. I think that's important. शेर होना ज़रूरी है, लेकिन सावधानी से. Does the song Sayoni bring nostalgia to you? Of course. I mean, this is quintessential Bollywood stuff. Every time you hear just the word Sayoni, it always rings a bell to all those melodious the music compositions that were there before. And I think Mohammed Bhai's film out here, and Lucky's film out here is hitting the point as far as commercial cinema is concerned. I think there's an element of that beautiful
Indianness that we all came from while watching movies growing up, that is there in this film, and I wish the couple all the best. I think there's a lot of heart and soul, and you can see their youth is behind it. So good luck to them. And Mohammed bhai, why aren't you in the film, yeah? No. I'm always behind the scenes. इसको film में रहना है. You should be in the Always film. behind the scene. Come, you all want to see the song, guys? Come up. Come on, let's go. Let's go. Thank you very much, guys. विदु, अभी आप ट्रेलर देखकर आए हैं, you're here for मोहम्मद जी and Lucky of course. What do you have to say? A pandemic almost ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है. We don't know still. Absolutely. कैसा लग रहा है आपको? Our industry is getting back. You see, फिल्म इंडस्ट्री यानी लास्ट 7-8 महीने से हम लोग समझ नहीं आ रहा बेचारे कैसे चल रहा है मामला, लेकिन अब हिम्मत दिखा के लोग रिलीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं. आई थिंक टेनेट ने भी बहुत अच्छा किया है. वंडर वुमन आ रही है और मुझे लगता है ये फिल्म तो एब्सोल्युटली बॉलीवुड टाइप की फिल्म है. एंड आई लव दिस सॉन्ग. सयोनी जो गाना है वो मतलब मेरा एक ज़माने का फेवरेट गाना है, एंड उसे वापस सुनने में बहुत मज़ा आता है. थोड़ा इन्हें चेंज किया वो गाना, लेकिन फिर भी माइंड ब्लोइंग बनाया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फिल्म्स आर बैक. बहुत ज़रूरी है इंडिया में एक एंटरटेनमेंट का आई थिंक सबसे बड़ा ज़रिया फिल्म्स है. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फिल्में थिएटर में फिर से लगने लग रही हैं. मेरा बड़ा दिल था टेनेट जाके देखूं, लेकिन उससे पहले मैंने देख ली, और अब मैं वंडर वुमन जाके देखूंगा और ये भी देखूंगा. तो थिएटर में भी आप मैसेज देना चाहेंगे विदु सबको कि थिएटर जाके फिल्म देखिए? एब्सोल्युटली. आपको समझना पड़ेगा कि प्लीज़ ज़्यादा इससे आप डरे मत. जो बहुत डर रहे हैं आई थिंक उनको ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और थोड़ी स्टीम ज़रूर लें जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता. वैक्सीन भी आ ही गए हैं, 5-6 आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला किसको लगेगा. लेकिन बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट गेट अफ्रेड. जैसे हमें वायरल होता था वैसे ही कोविड है. बिंदु सर, अभी मीका भी आने वाले थे लेकिन अभी आ नहीं पाए, तो मीका का जो कमेंट है कंगना को लेकर उसका क्या कहना चाहेंगे? वो दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए, हर कोई कर रहा है उनको, लेकिन कंगना का जो बेसलेस कमेंट्स है मतलब जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं. हाँ नहीं, आपको समझना पड़ेगा कंगना कभी कभी उनकी ट्वीट्स बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं, और वो सोचती हैं कि वो सही चल रही है, लेकिन हमें गलत लग सकता है. और इस बार दलजीत को गलत लगा है. दलजीत की पहली फिल्म मेरे साथ थी लायन ऑफ पंजाब, और तभी मुझे दिख रहा था इसमें बहुत फायर है. उसने ट्वीट पे भी दिखा दिया कि बहुत फायर है. एंड आपको समझना पड़ेगा हम पंजाबी हैं, और हमें लगता है कि फार्मर्स के साथ अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो हम उन्हें सपोर्ट करें, तो हम सपोर्ट करते हैं. लेकिन हमें लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिस्ट्री जब से हम पैदा हुए हैं तब से मोदी जी जैसा हमने देखा नहीं. तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. तो हम चाहते हैं कि मोदी जी इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के अंदर. जिस तरीके से पहले फार्मर्स सुसाइड करते जा रहे हैं तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी. तो मोदी जी ऐसा काम करके दिखाएंगे कि कभी सुसाइड ना हो, हमें पता है. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जो दिल्ली तक पहुंच गई है, इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए. सर, ये भी कहना चाहूँगा कि जब सेलिब्रिटी कमेंट करते हैं, ट्विटर वॉर्स होते हैं, टग ऑफ वार कर सकते हैं या सैटेलाइट चैनल्स पे, मतलब इस तरह का, तो ये अगर सपोर्ट करना है या नहीं करना वो आप साइलेंटली भी कर सकते हैं. तो इसके बारे में पता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि आप सोशल मीडिया पे या चैनल्स पे आके बोल रहे हैं कोई. नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी को तो वो ट्वीट कर देते हैं, फिर उन्हें कोई करेक्ट करता है तो बात कभी कभी बढ़ जाती है. तो ये बढ़ गई है बात. तो ऐसी बात जब बढ़ जाती है तो उसमें कई लोग घी भी डालते हैं. हमारे इंडिया की सेइंग है कि घी डाल दो थोड़ा और, तो वो फिर घी और भड़क जाता है. तो हम ऐसे काम नहीं करते, कोशिश करते हैं कि ऐसे चीज़ के अंदर आग ना डालें. इसीलिए हम चाहते हैं बस कि फार्मर्स और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पे आके ये सेटल हो जाए. बहुत इंडिया के अंदर चीटिंग है, आपको समझना पड़ेगा. वही मोदी जी सारी चीटिंग रोकने की ट्राई करते हैं. तो एक ट्रक है 35 टन का आता है, और वहाँ जैसे गवर्नमेंट के गोडाउन में जाता है तो 50 टन हो जाता है. फार्मर के लिए 30 टन मिलता है, 20 टन कहाँ जाता है. वो कोशिश है ये जो गुल हो जाता है माल उसको रोकने की. तो वन मोर थिंग, आई मीन बिग बॉस की भी बात कर लें कि अभी बिग बॉस का जो सेशन जो चल रहा है, अभी आप देखिए जो शुरुआत हुई थी अभी हिस्सा रह चुके हैं. तो इनिशियली सेलिब्रिटी से स्टार्ट हुआ, फिर कॉमन पीपल के लिए भी, फिर बहुत एवरेज लोगों के लिए भी, और जिस तरह का मतलब इक्वेशन है जो लोग अंदर हैं उस हाउस में, उसके में बताइए कि आप कितना ज़्यादा समझ डिटोरेट हुआ है. टीआरपीज भी नहीं है कुछ खास. आपको समझना पड़ेगा लास्ट ईयर बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट बिग बॉस चला है. सिद्धार्थ और सना ने और बाकी सब ने जितने भी लोग थे, आई थिंक बहुत सुपर हिट सीज़न 13 दिया और बहुत लंबा खींच दिया. बिग बॉस की यानी कैश बैंक बहुत बढ़ रहा था, उनको दिल कर रहा था ख़त्म ही ना हो, 5-6 महीने लगा दिए. तो उसके बाद फिर से बिग बॉस आना एक बहुत ही हार्ड चीज़ थी. लेकिन वो सिद्धार्थ को वापस ले आए, गौहर और हीना को लाए, तो स्टार्ट अच्छा हो गया. पर उसके बाद ये लोग आई थिंक थोड़ा सा भटक गए, बहक गए, कुछ अलग ही टाइप का बिग बॉस चला रहे हैं. तो मेरे जैसा आदमी भी देख नहीं पा रहा और दिल नहीं कर रहा कि बिग बॉस देखना ही है. मैंने हमेशा ज़िंदगी में बिग बॉस ऐसे देखा है कि एक भी एपिसोड छोड़ता नहीं, पर इस बार दे फेल्ड अकॉर्डिंग टू मी.
लेकिन क्या रॉन्ग हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, आई डोंट नो। जो टीम है वो तो वही आंसर कर सकती है। दे शुड बी सैक्ड, जिसने भी ये साल का बिग बॉस चलाया है। समथिंग सरप्राइज फ्रॉम योर साइड फ्यूचर में करने वाले कुछ ऐसा यूनिक या कुछ ऐसा इनोवेटिव? हम भाई देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे तरफ से। कभी अयोध्या जाके रामलीला, कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब ऊपर वाला जो काम देता है हम लोग तो कर लेते हैं। पर अभी फ़िलहाल तो बीवी का है, सब लोग को नेल पॉलिश लगाती जा रही है, ब्लू स्काई करती जा रही है। और पिक्चरें चल रही हैं 2 पंजाबी, एक नानक नाम जहाज़ है और एक निडर। तो 2 ये पिक्चरें चल रही है। एक हिंदी पिक्चर भी करने जा रहे हैं अभी। एक कल परसों में मेरा वो आएगा, क्या इसको बोलते हैं, सावधान इंडिया। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है।